as soon as he will join, we will welcome him. And Priyanka madam, I would like to request you कि हम start करें, right? Sure, sir. और जैसे वीसी सर अगर आते हैं तो वीसी सर को हम उसमें ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो हम अपना स्टार्ट करते हैं. परेश भाई. Yes, sir. Shall we go? Yeah, please, sir. As Okay, you say. So yes. how is something moving? Even then, now dice is yours. As you say, we'll definitely start our meeting, and I think 46 participants have already joined us. So definitely we can wait for the VC sir, or else with the permission of Priyanka madam, we can proceed. Am I audible? My voice is clear? Yes, sir. Should I start, sir? Yes, sir. Yes, sir. You are very much audible. And प्रियंका मैडम, वीसी सर की अनुमति के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं. और जैसे वीसी सर हमें ज्वाइन करेंगे, हम उनको वेलकम करके और उनके आशीर्वचन के लिए बीच में हम उसमें. Sure, sir. Sure. So, good evening to all of you. I am Priyanka Soni from Department of Computer Science and IT, Janardhan Rai Nagar Asthan Vidyapeeth, Deemed to be University. Welcomes you all in today's talk show, Next Generation Resume, organized by Janardhan Rai Nagar Asthan Vidyapeeth in collaboration with CSI and TechOid, Technology Knows Solution, to present yourself in the best way to your future employer. I convey my special thanks to the Director of Department of Computer Science and IT, Janardhan Rai Nagar Asthan Vidyapeeth, Deemed to be University, Professor Manju Mandot ma'am, and the coordinator, Dr. Bharat Singh Devra sir, the ex-chairman of CSI Udaipur chapter, who planned this special talk show exclusively for the staff and students of Janardhan Rai Nagar Asthan Vidyapeeth, Deemed to be University, Udaipur. Today, our special guest, chief guest, the Honorable Vice Chancellor sir of Janardhan Rai Nagar Asthan Vidyapeeth, Colonel Professor S.S. Sarangdev sir, our today's key speaker and expert, the Director of FGTU, Mr. Paresh Bhatt. I also welcome to the organizer of today's talk show, the CEO of TechOid and the Chairman of CSI of Udaipur chapter, Dr. Paras Kothari sir, and TechOid team members, Mr. Manoj Kumawat and Mr. Sanjay Kumawat sir. I also welcome to all deans, directors and principals of various colleges of Janardhan Rai Nagar Asthan Vidyapeeth, Deemed to be University, and thanks to all for motivating their students to participate in this program. Resume. Everyone consider it as a least important document and not pay very much attention on its documentation. But a resume is an important tool for your job search because it offers a page or two where you can display your top skills and qualities. However, a resume is much more than that. Resume helps employers make hiring decisions and help you get your first interview call. That's why it matters how you can structure your resume and what information you decide to include. In today's talk show, we shall go to know each and everything about how to write a resume, types of resume, tips and characteristics of good and effective resume. Before we get started, I would like to go over a few items so you know how to actively participate in today's talk show. You will have the opportunity to ask your questions by typing in chat box, and that will be answered by our experts. In the end of the session, we will provide you a feedback form which is compulsory to fill. On behalf of that, your attendance will be considered and certificates will be provided to only those who will fill the feedback form. Now, I shall hand over this program to Mr. Manoj Kumawat sir and our expert, Mr. Paresh Bhatt sir. Sir, please. Thank you, madam. Thank you very much. I am sure that I am audible and visible also. I would like to thank all the university staff and students here, and foremost the Honorable Vice Chancellor sir, who has taken this initiative to connect students with the latest in what resume of
for not only resumes what are prevalent in industry now, but resumes for future. और जब हम resumes for future की बात करते हैं, then we have a person जिनका नाम आता है हमारे पड़ोस के स्टेट से, गुजरात से, मिस्टर परेश भट्ट. He's an expert in resume. He's expert, I'll say, not only an industry expert, but also an expert who is well connected with students. बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में परेश भट्ट जो हैं रेगुलर उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं. एंड द बेस्ट थिंग इज दैट ही इज एन अविड, ही इज एन very proficient reader also. उनके observations, उनके जो examples हैं, these are like very much liked by student. And before starting with the overall situation, मैं जैसा कि मैं और परेश भाई हमारा पहले भी इस मुद्दे पे काफी डिस्कशन हो चुका है. I would like to make sure कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परेश भाई से, परेश भट्ट साहब से हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ले पाए. और इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में we were discussing on new education policy, जो 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसमें बहुत सारे हमको वैरायटी ऑफ चेंजेस देखने को मिलेंगे. और ही इज ऑन नेशनल पैनल्स आल्सो फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी. तो हम परेश भाई से सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सर, आई नो दैट टुडेज टॉपिक इज रिज्यूमे, बट आई वांट टू know some pointers on new education policy which will not only help students but also as faculty members हमको कौन सी चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए through new education policy. Thank you, sir. Thank you very much and good evening to all. Friends, this is not something different. जहां पर भी जाते हैं, जब से नई एजुकेशन पॉलिसी की बात हुई है, ये सवाल आना बहुत साजिक है और होना ही चाहिए. बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो एक परिवर्तन लाने वाली है, वो परिवर्तन के साथ अभी से हम अपने आप को मेंटली और स्किल वाइज यदि हम इसको अपडेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि वी विल बी इन पोजीशन टू अचीव मोर. सो दोस्तों, हम विषय प्रवेश करें इसके पहले मैं आपकी यूनिवर्सिटी, खास करके मैम. जी सर. यस सर. हमारे साथ वीसी सर जुड़ चुके हैं, सरंगदेव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं. नमस्कार सर. तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ. वेलकम सर. Good evening, sir. I warmly welcome your today's chief guest, the Honorable Vice Chancellor, sir, of Janardhan Rai Nagar Asthan Vidyapeeth, deemed to be University Udaipur, Colonel Professor S.S. Sarangdev, sir. थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले मैं थोड़ा सा तकनीकी खामियों के कारण थोड़ा लेट से जुड़ा, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ. मैं हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी और साथ ही आज के हमारे इस प्रोग्राम की मुख्य जो करता है श्री परेश भट्ट साहब, उनके प्रति बहुत ही मैं अपनी ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे युवाओं के लिए जो स्पेशल जो एक रोजगार के लिए जिस तरह से वो तैयारी करते हैं, मेरे ख्याल से जहाँ अपना आवेदन करते हैं रिज्यूम बहुत ही प्रॉपर होना बहुत जरूरी है. और जिस तरह से उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन रिज्यूम प्रेजेंट करते हैं, युवा किस से अपने आप को बेस्ट वे से अपने आप को इन फ्यूचर एम्प्लॉयर के सामने रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है. साथ ही हमारे DCNSIT की डायरेक्टर प्रोफेसर मंजू मांडोत, हमारे डॉक्टर पारस कोठारी जी, भरत सिंह जी देवड़ा और पूरे हमारी जो फैकल्टी मेंबर और साथ ही जुड़े हुए सभी को मैं इस विषय पे जो जुड़े हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिस पे चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है. हम हमारे जो बच्चों को हम कितना ही नॉलेज वाइज हम किस तरह से अपने आप को तैयार करते हैं, लेकिन यदि उनका जो फर्स्ट जो इम्प्रेशन होता है वो कहीं अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले उनका रिज्यूम होता है. तो हम किस तरह से अपना रिज्यूम तैयार करें, ये बहुत बड़ी जरूरी चीज है.
क्योंकि बहुत सी बार रिज्यूम क्या है और सीवी क्या है, लोग उसका डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि रिज्यूम एक बहुत बड़े इसमें एक बड़ी आर्ट होती है, और उस आर्ट को अपने आप को प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी लोग अपनी बात को अपने तरीके से कहते हैं, लेकिन किस तरह से थोड़ा सा अलग से उसका प्रस्तुतिकरण होता है जिसके माध्यम से वो अपने आप को अलग दिखते हैं, ये चीजें होना बहुत जरूरी है। जैसे हम जानते हैं कि रिज्यूम मोस्टली एक पेज में होना चाहिए, और क्योंकि सीवी जो होता है उसकी एक अलग अप्रोच होती है, वो थोड़ा सा कह सकते हैं ये कैन बी लॉन्गर होता है कंपेयर टू रिज्यूम। और रिज्यूम इज यूज टू, एक कह सकते हैं कि हमारी जो जॉब हंटिंग इन ऑल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, वहाँ इसकी रिज्यूम की जरूरत होती है, जबकि सीवी को हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि हमारी जो स्किल है, हमारे जो एक्सपीरियंस है, उसको किस तरह से हम हमारी उसकी जो चीजें हैं, यानी कि जॉब एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन एकेडमिया है, वहाँ सीवी का यूज ज्यादा होता है। खैर ये सब हमारे जो निष्णात हैं, जो लोग इस तरह से, जो स्पेशली हमारे भट्ट साहब हैं, वो इस चीज को बहुत ही बारीकी से बताएंगे। लेकिन मैं बहुत ही थोड़ी सी बातें मैं कहना चाहूंगा कि हमें किस तरह से अपने आप को कीप इट सिंपल रहना चाहिए। रिज्यूम बहुत ही आपका सिंपल होना चाहिए, क्लियर सेक्शन हेडिंग्स होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स, और किस तरह से आपको एक डिफरेंट कलर्स, वो सब चीजें, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें जैसे कि स्किप द फनी ग्राफिक्स, और ये जो चीजें होती हैं ये ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे आप आज सीखेंगे। मुझे आशा है कि हमारे युवाओं के लिए, जो स्पेशली अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रहे हैं या +2 कर रहे हैं या पर दौड़ गए ने जावरा दिखाई। ना कैमरा म्यूट का है। Respected sir, your voice is muted. It's unmute now, I suppose. Sir, please Thank you, sir, continue, sir. for sharing Thank your you. motivating thoughts to all of us. Now, please, Paresh sir and Kumawat sir, continue. I would request, thank you very much, sir, for your motivating words, and it's really innovative and very motivating that how you motivate your students to be updated in field, and definitely आपने जितने भी aspect कहे हैं, we would try our level best to cover all these topics, and I would hand it over to Paresh Bhatt साहब, जो हमारा लास्ट का डिस्कशन था कि और जो बेस बनाएगा, बिकॉज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि जब हम रिज्यूमे की बात करते हैं और एनी ऑफ दी ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि हमको अपने जॉब्स के साथ जोड़ता है या फिर अपने फ्यूचर के साथ जोड़ता है, वहां पर वी नीड टू ऑल्सो फोकस ऑन फ्यूचर एस्पेक्ट्स. सो फॉर दोज एस्पेक्ट्स आई वुड लाइक टू इनवाइट अगेन मिस्टर परेश भट्ट. जी धन्यवाद सर, धन्यवाद. मुझे लगता है कि वीसी सर का आशीर्वाद से एक प्रश्न भी मुझे बहुत अच्छा मिल गया है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रश्न को हम बिल्कुल कवर भी कर लेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिज्यूमे एंड सीवी. लेकिन आपका जो पहला प्रश्न था, इसको अभी थोड़ा सा मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट or of this new education policy. देखो दोस्तों, बात ये है कि नई एजुकेशन पॉलिसी का आना और कोविड का साथ में आना, इट्स ए कोइंसिडेंस.
एजुकेशन इंडस्ट्री में जो 100 साल में जितने भी जो एक्शन में परिवर्तन नहीं हुए, या फिर एजुकेशन इंडस्ट्री को छोड़ते हुए हमारे मानव जीवन में जो 100 साल में हमने बिहेवियरल चेंज नहीं लाए हैं, इससे ज्यादा 100 दिनों में आ गए हैं। मतलब कोविड हैज चेंज अवर थॉट प्रोसेस। इस previously we were discussing in front of the crowd, now I am discussing in front of the camera। पहले की बात और अब की बात में कुछ फर्क है, और दिस ऑल चेंजेस हैज हैपेंड, दिस इज इरिवर्सिबल चेंजेस हैज हैपेंड। अब वो दिन आने वाले नहीं है। तो दोस्तों अब नाउ वी विल हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ विद द न्यू नॉर्मल। और न्यू नॉर्मल में मुझे 5 प्रकार के चेंज दिखाई पड़ते हैं। जो साहब का प्रश्न है इसका उत्तर देते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहला चेंज है वो है अब जो डिमांड आने वाली है, युवाओं की डिमांड आने वाली है, इट विल नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज, इट विल बी बेसिस ऑन द स्किल्स। अब आप बोलेंगे यार इसमें कौन सी बड़ी बात बोल दी। दोस्तों अब तक हमारे पास जो स्किल थी वो स्किल अब हमको दुनिया के सामने रखनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ एक्सप्रेशन। हम अभिव्यक्ति के समय में जिंदा है, तो हमको जो भी स्किल है, हमने जो भी स्किल एक्वायर्ड किया है, इसको लोगों के सामने योग्य माध्यम से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, कम्युनिकेशन। टिल नाउ कम्युनिकेशन वाज अ वेरी little portion of any personality development. Now the communication is going to be a very important factor to convince somebody, since it is concerned with this resume writing or resume presentation, we should have to ability to express ourselves। हमारे पास खुद को प्रदर्शित करने की, एक अभिव्यक्त करने की एक जो स्किल है वो डेवलप करनी पड़ेगी। नंबर 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है वैल्यू बेस्ड यूथ। नई एजुकेशन पॉलिसी का जो फलश्रुति होगा वो फलश्रुति होगा समाज को मूल्यवर्धित युवाओं की आवश्यकता है। और इसीलिए याद रखना दोस्तों, वैल्यू के साथ हमको जिंदगी जीना पड़ेगा। 4 नंबर पे जो आता है वो है हमको सिर्फ डोमेन नॉलेज नहीं चाहिए। आउट ऑफ द डोमेन नॉलेज we should have at least common sense, common knowledge, extra knowledge। तो दोस्तों ये जो 4 बातें हैं, और लास्ट में एक 5वीं बात भी मैं आपके साथ कहूंगा, और वो है इनोवेटिव थिंकिंग। जैसे कि अभी वीसी सर ने बोला कि हम किस प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहने का, बात करने का एक अलग सा तरीका हमको लेके आना पड़ेगा। तो ये 5 चीजें हैं, वो मनोज जी मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू नॉर्मल में और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की फलश्रुति होगी। तो ये 5 चीजों के लिए हमको खुद को तैयार करना पड़ेगा। चाहे मैं फ्रेशर हूं, चाहे मेरे 5 साल 10 साल का मेरे पास अनुभव है, या मेरे पास 27-28 इयर्स का तजुर्बा है, इवन देन नाउ I will have to prepare myself with all these 5 characteristics, which is going to be the result of new education policy 2020. Yes, sir. Definitely, sir. Sir, you are mute. Yes, sir. Thank you very much. आपने जो अपनी इतने समय की स्टडी थी उसको बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ तरीके से सारे स्टूडेंट्स को बताया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आई एम श्योर कि बच्चे भी काफी टाइम से सोच रहे होंगे, लेट्स स्टार्ट विद द थिंग। और जब भी हम बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो सब इंस्टीट्यूशन का जो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन रहता है कि बच्चे जो हैं वो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन नहीं करके आते, या फिर मान लीजिए अगर खुद से भी कहीं पर जाते हैं, सपोज इफ वी टॉक टू एचआर एक्सपर्ट्स आल्सो या फिर एचआर प्रैक्टिशनर से जब बात करते हैं, सो दे से दैट स्टूडेंट्स प्रिपेयर होकर नहीं आते। और इसी में और एंड टॉकिंग फ्रॉम स्टूडेंट साइड, तो स्टूडेंट को लगता है दैट सपोज इफ यू वांट टू गो फॉर अ जॉब, तब आपको इतना प्रिपेयर होने की जरूरत कहाँ पर है? बिकॉज इफ एन एम्प्लॉयर हायर्स यू, तो वो तो आपको हायर करेगा एज एन पर्सनैलिटी, आप जैसा भी हैं आपको हायर करना पड़ेगा, राइट? और सो जो बेसिक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का यहाँ पर कि व्हाई टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, हमको इंटरव्यू के लिए तैयारी ही क्यों करनी है?
वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे लगता है मनोज जी, अब आपके सवाल से हम आज के विषय में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों, व्हाई टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। मैं इस सवाल का जवाब एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ देना चाहूंगा। पानी के यानी कि स्विमिंग पूल के एक एंड से जब एक स्विमर अंदर कूदका लगाता है, व्हेन दे डाइव इन, तब उसका नाम होता है माइकल फेल्प्स। 1 मिनट की, 1.5 मिनट की या 2 मिनट की स्विमिंग करने के बाद स्विमिंग पूल के उस एंड पे जब वो निकलता है, तब उसका नाम होता है विश्व विजेता माइकल फेल्प्स। तो 2 मिनट में माइकल फेल्प्स नाम के बंदे ने क्या किया? उसने जो 2000 कलाक प्रैक्टिस की थी, उसका बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। इन द सेम वे, एक समय में आपको मालूम होगा दोस्तों, माइक टायसन दुनिया का सबसे बड़ा हैवीवेट चैंपियन बने, अपने प्रतिस्पर्धी को सिर्फ 90 सेकंड यानी कि 1.5 मिनट में उसने अपने प्रतिस्पर्धी को ढेर कर दिया था। तो माइक टायसन ने वो 90 सेकंड में क्या किया था? उसने जो 900 कलाक प्रैक्टिस की थी, उसका बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था। इन द सेम वे, यदि एक बच्चा है जिसने करीबन 150 कलाक के लिए अपनी जॉब के लिए प्रिपरेशन किया है, तो जब वो एंटर होता है तब अनएम्प्लॉयड यूथ होता है, और 1 कलाक या आधा कलाक के बाद वो चैम्बर से जब बाहर निकलता है, तो उसका नाम या उसके पास अपना एक अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर होता है, मतलब एम्प्लॉयड यूथ होता है। तो why to prepare for the interview? Just to crack the interview. Number 1. Number 2, tough competition. Friends, there is a huge competition is there. It is not like that we are the only monopoly available in this world and employers are going to offer a job by default. No. Nobody is monopoly in the world except Almighty. ईश्वर के अलावा किसी की monopoly नहीं है। तो number 1 is tough competition. हर साल इतने लोग मार्केट में आ रहे हैं, जो लोग अपने आप को बेटर जॉब के लिए अपने आप को हर जगह पर रिप्रेजेंट करते रहते हैं। तो टफ कंपटीशन इज देयर, नंबर 1। नंबर टू इज अ साइंटिफिक अप्रोच ऑफ द इंटरव्यूअर। दोस्तों, आपको ताज्जुब लगेगा, आई स्टार्टेड माय करियर इन 1994। When in 1994 my interview was there were only 5 candidates और 2 वैकेंसी थी। तो 2 वैकेंसी, सिर्फ 5 लोग थे, और उसने मुझे सब 2-3 सवाल जो थे वो पूछा गया, मैंने जवाब दिया और आई गॉट द अपॉइंटमेंट लेटर। लेकिन अब सिचुएशन अलग है। अब 5 पोस्ट होती है, 100 एप्लीकेशन आती है, मोर देन 100। I am a consultant with 18 engineering colleges, 2 universities in Gujarat. Not only that, I am also affiliated with the government of Gujarat for the same purpose. और इसके अलावा भी बात करूं तो बहुत सी कंपनी के इंटरव्यू पैनल में मैं बैठता हूं, और ये जो मेरा पूरा तजुर्बा है, वो तजुर्बा आपके सामने ये टेकवर्ड के माध्यम से रख रहा हूं। इसीलिए कहता हूं कि 5 वैकेंसी होती है, मोर देन 100 एप्लीकेशंस आती है। अब साइंटिफिक अप्रोच क्यों डालते हैं? क्योंकि कंपनी इज नॉट हायरिंग एनी IQ, मतलब जिसका इंटेलिजेंट क्वोशंट बहुत हाई है, सिर्फ उसको हायर नहीं करती है। जिसका इमोशनल क्वोशंट, जिसका बिहेवियर अच्छा है, ऐसे लोगों को कंपनी हायर करती है। बिकॉज कंपनी इज हैविंग इट्स ओन कल्चर। वो कल्चर में फिट होता है या नहीं होता है, इसके लिए वहां पे हमारा साइकोलॉजिकल अलग अलग रूप से टेस्ट होता है। मैं आपको 1-2 एग्जांपल भी दूंगा। दोस्तों, मैं गुजरात का एक ऐसा ट्रेनर हूं जो हर बात पे रिलेवेंट एग्जांपल देके आपको कन्विंस कराने की कोशिश करूंगा। और इसीलिए फॉर एग्जांपल XYZ करके कोई कंपनी में आपका इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू देने चले गए, 10 बजे का टाइम था, तो ऑब्वियसली बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन और हमको जॉब चाहिए, तो हम 9:45 बजे 9:45 AM को हम पहुंच जाएंगे। द मोमेंट वी विल एंटर इन द प्रीमाइसेस ऑफ दैट कंपनी, हम रिसेप्शन पे जाके बताएंगे कि आई एम XYZ एंड आई एम हियर फॉर द इंटरव्यू। तो वहां रिसेप्शन पे बैठा हुआ जो बंदा होगा या जो लेडी होगी, he or she will instruct you, sir, thank you very much, please be seated, आप बैठिए।
आप खुशी खुशी बैठ जाएंगे। आपके अलावा भी बहुत से लोग वहां पे आ गए होंगे, आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे तक वो वेट करवाएंगे। आपको दिमाग में ऐसी सोच आनी चालू हो जाएगी, ये तो कोई कंपनी है, 10 बजे का टाइम था, 12:15 हो गया, मैं तो कितने दूर से आया हूँ, अभी तक मेरा कोई इंटरव्यू की पूछपरछ। आप वहां जाएंगे, पूछेंगे, मैडम व्हाट इज द सिचुएशन, आई एम हियर फॉर सर, आई हैव ऑलरेडी कन्वेड द मैसेज और योर टर्न विल बी वेरी सून। जैसे ही आपका टर्न आएगा, इतनी शांति से हमको जवाब देंगे जो हमको गुस्सा करने का मौका भी नहीं देंगे। आप और बैठेंगे, और आधा घंटा, 1 घंटा, करीबन आपको भूख लगनी चालू हो जाएगी, 1:30-2 बज जाएंगे। दोस्तों, हम सोचते हैं हमारा इंटरव्यू क्यों नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, इंटरव्यू हैज बीन ऑलरेडी स्टार्टेड। आपका इंटरव्यू शुरू हो गया है। अब आप बोलेंगे कैसे, अभी तक तो कोई मिला नहीं। यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन। किसी इंसान का चरित्र देखना है तो वो फिजूल का समय का उपयोग कैसे करता है, वो उसका चरित्र होता है। जब हमको कोई नहीं देखता तब हम क्या देखते हैं, वो हमारा चरित्र होता है। जब हमको कोई काम नहीं है उस वक्त हम क्या काम करेंगे, वो हमारा चरित्र है। ऐसे ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा। कोई लोग होगा, कोई बच्चे होंगे जो आपकी तरह बहुत अच्छे होंगे, तो वो लोग अपना लैपटॉप ओपन करेंगे और लैपटॉप में अपना काम करना चालू करेंगे। 1 घंटा 2 घंटा समय मिला है तो कुछ ना कुछ फ्रेश करते रहेंगे। कोई लोग होते हैं वो मैगजीन निकालते हैं और मैगजीन के सिर्फ फोटो दिखते हैं, वहां पे मैगजीन, प्रोफेशनल मैगजीन, बिजनेस मैगजीन रहते हैं, तो वो देखेंगे। खास करके लड़कियां होती है, वो सेल्फी खींचने में अपने आप को बिजी बना देती है। कोई लोग होते हैं वो कान पे वो ईयर प्लग लगा के फोन पे बातें करते रहते हैं या फिर वो गेम खेलते हैं। दोस्तों, हम जो अलग अलग एक्टिविटी करते हैं वो सभी एक्टिविटी हमारी सोच का प्रदर्शन है। और दिस काइंड ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट हैज बीन ऑलरेडी हैपन। तो नंबर 1 इज टफ कंपटीशन, सेकंड दैट इज साइंटिफिक अप्रोच, और थर्ड दैट इज कॉन्फिडेंस। दोस्तों, यदि हमने प्रैक्टिस नहीं की है, हमने प्रिपरेशन नहीं की है, तो वहां पे जाके क्या बोलेंगे। सभी को मालूम है, एवरीबॉडी नोज, सबसे पहला सवाल आने वाला है, यस मिस्टर परेश, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। और यदि हमने सही तरीके से इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो क्या होगा। सर माय नेम इज परेश, सर आई हैव वन फादर, सर आई हैव वन मदर, बस ऐसे ही गाड़ी चालू हो गई, क्योंकि वी हैव नॉट प्रैक्टिस। और फॉर दैट मैटर, मनोज जी, आपके प्रश्न का जवाब मैं यहाँ पे दे रहा हूं कि we have to prepare for the interview 3 reasons. Number 1 is tough competition, second that is psychometric test यानी कि psychological interview, और third one that is the confidence. इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, खास करके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कोई बंदा इंजीनियरिंग करके खत्म करके आता है, कोई MBA, करीबन 10 लाख का इन्वेस्टमेंट जब होता है, तब हमारे पास वो यूनिवर्सिटी की डिग्री आती है, और 10 लाख का 2% भी गिना जाए तो हर महीने जब तक 20,000 की तनख्वाह नहीं मिलती है तब तक हम अपना जो ब्याज खाते वो भी नहीं निकालते हैं। और इसीलिए दोस्तों, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। ओवर टू मनोज सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दिस। एंड आई एम श्योर अभी का जो जनरेशन है, we have heard about कि generation X आया, Y आया, and now generation Z is there, especially। और अभी जो हर 5 सालों में एक नया जनरेशन आ रहा है, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। इसी सीरीज में देयर इज वन मोर क्वेश्चन जो कि नॉर्मली बच्चों के दिमाग में आता है, और आप ये भी नोटिस करेंगे सर कि बच्चे हमेशा पूछते हैं कि भाई हमको करना ही क्यों ऐसा, राइट। सो फर्स्ट वन वाज कि हमको इंटरव्यू के लिए तैयारी ही क्यों करनी है। एंड सेकंड जो हमारा क्वेश्चन आता है इस सीरीज में, दैट इज रिज्यूमे की जरूरत क्या है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इंटरव्यू तो मैं वैसे भी दे सकता हूँ जाकर, राइट। एंड मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं सारे, मैं अपनी फाइल बनाकर ले जाऊं जिसमें ग्रेजुएशन से लेकर या पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर मेरे पास सारे सर्टिफिकेशंस हो, एंड जैसे जैसे मुझे सवाल पूछते जाएं वैसे वैसे मैं जवाब देते जाऊं। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रिज्यूमे एंड व्हाई रिज्यूमे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है सर।
यस, मैं आपको ही मनोज जी एक सवाल पूछूंगा और आप ये प्रश्न है ना उसको बिल्कुल लाइटली लेके मुझे जवाब देना। सर मैं आपको ये प्रश्न पूछूंगा, बहुत इंटेलिजेंस से मत देना, हाँ, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंस से सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। सर मुझे बताइए, जॉब किसको मिलती है? सीधा जवाब। सब लोग, मुझे सुनने वाले सब लोग अपने दिमाग में अपना अपना जवाब फिक्स करके बैठो। ओवर टू मनोज सर। सर जॉब किसको मिलती है? सो जॉब हम तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप इंटरव्यू में जो कोई भी प्रयत्न करेगा उसे जॉब मिलेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये सवाल का जवाब आपने जो बताया ना, अभी हमारे पास करीबन 60 लोग हैं, 60 लोगों के दिमाग में सेम आंसर होगा। अब थोड़ा सा मेरा जवाब सुनिए। जॉब उसको मिलती है जो इंटरव्यू पास करता है। इंटरव्यू वो पास करता है जो इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू वो देता है जिसको इंटरव्यू का कॉल आता है। इंटरव्यू का कॉल उसको आता है जिसका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ। रिज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ तो इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा तो मैं इंटरव्यू देने नहीं जा पाऊंगा। मैं इंटरव्यू देने ही नहीं गया तो इंटरव्यू फेस नहीं कर पाऊंगा। देखो कितना बेसिक सवाल है। और इसीलिए मैं कहता हूं ये रिज्यूमे है वो हमारा मार्केटिंग टूल है। यदि मेरी खुद की, मेरे मामा की, मेरे चाचा की भी कोई कंपनी होगी, वहां पे मेरा नौकरी करना तय होगा। जैसे ही मैं मामा या चाचा को फोन करूंगा, अंकल आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन और मास्टर, बाय टुमारो आई वांट टू जॉइन योर कंपनी, तो सबसे पहले बोलेंगे एज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेलिटी इवन यू प्लीज सेंड योर रिज्यूमे। तो दोस्तों सबसे पहले रिज्यूमे है वो हमारा मार्केटिंग टूल है। खुद का मार्केटिंग करने की एक प्रॉपर जगह है जहां पे मैं क्या हूं, मुझे क्या आता है, व्हाई आई एम द फिट फॉर द जॉब, ये सब कुछ दिखाने का जो जगह है इसको हम कहते हैं रिज्यूमे। और भी एक छोटा सी बात बताता हूं दोस्तों, हम सब लोगों ने देहात में सपेरे का खेल दिखा है जिसको हम गुजराती में मदारी कहते हैं। वो सपेरा भी जैसे ही अपना खेल शुरू करता है इसके पहले वो डमरू बजाता है। ये डमरू क्या है? उसके धंधे की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। सेम वे इफ आई एम अ गुड ट्रेनर, ये टेकोइट जो है तो टेकोइट एंटरप्राइज ने इतना बहुत बड़ा जो अनुष्ठान शुरू किया है और मेरी कंपनी के साथ उन लोगों ने जिस प्रकार से एक टाइप किया है, तो दोस्तों आप समझ सकते हो मैंने भी टेकोइट के सामने खुद का डमरू एक दिन बजाया होगा कि आई एम अ वेरी गुड ट्रेनर, आई हैव दिस मच ऑफ द वर्क। मतलब खुद का मार्केटिंग करने की एक जगह, दैट इज रिज्यूम। नंबर 1, ए वे टू सेल, और सामने वाले को कन्विंस करने के लिए मुझे क्या टेक्निकली आता है, मुझे क्या प्रोफेशनली आता है, मेरी उपलब्धि है क्या, ये सब कुछ चीजें हमको यहाँ दिखाने के एक जगह है। नंबर 3, मेरे पास जो अनुभव है, तजुर्बा है, उसको हाईलाइट करने की एक जगह है। और सबसे बड़ी बात, ए वे टू गेट एन इंटरव्यू कॉल, मतलब कि इंटरव्यू कॉल यदि आपको चाहिए तो हमको रिज्यूम बनाना पड़ेगा। मैं कहता हूं इफेक्टिव रिज्यूम बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर मैं आऊंगा। शॉर्टलिस्ट हो जाए ऐसा असरकारक, इफेक्टिव, टू इमर्ज आउट ऑफ द क्राउड, हम कुछ हुजूम से हटके खड़े रहे, ऐसा असरकारक रिज्यूमे बनाना पड़ेगा। एंड दिस रिज्यूमे विल एंश्योर इंटरव्यू कॉल। दोस्तों हम किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, हमारे से पहले हमारा रिज्यूमे पहुंचता है और वो रिज्यूमे तय करवाता है वेदर वी आर गोइंग टू इनवाइट फॉर द इंटरव्यू और नॉट। मतलब रिज्यूमे है वो हमारा अक्षर देह है, शब्दों से लिखा हुआ हमारा चरित्र है, और उसको अच्छी तरीके से बनाएंगे तो इंटरव्यू कॉल आएगा। इंटरव्यू कॉल आएगा तो बाकी की जो हमारी कहानी है वो आगे बढ़ेगी। यस सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। और इसी सीरीज में जैसे और एक और जो कॉमन क्वेश्चन आता है, जैसे आपने कहा था कि एनईपी इज ऑल अबाउट स्किल बेस्ड एजुकेशन। स्किल मतलब कि ना सिर्फ आपको पता होना चाहिए पॉइंट्स के बारे में, बट एक्चुअल में उस पे है क्या आपको ये भी पता होना चाहिए, उसको
करना कैसे है आपको ये भी पता होना चाहिए। सो लेट्स जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है हमारा इस पूरे टॉक शो का, लेट्स मूव टुवर्ड्स इट, एंड दैट इज दैट व्हाट ऐसी कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि रिज्यूमे में होने चाहिए। एंड आप इस सवाल का जवाब आने से पहले आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल द कंटेस्टेंट, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ, स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, जस्ट मेक श्योर कि आपको भी अगर कोई सवाल ऐसा आपके पास आता है, मेक श्योर दैट यू पुट इट इनटू चैट बॉक्स, विल श्योरली टेक द क्वेश्चन। एंड बैक टू यू सर कि रिज्यूमे में होना क्या चाहिए, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिज्यूमे, एंड आई वुड से एन इफेक्टिव रिज्यूमे। बस वो बात इम्पोर्टेंट है। मनोज जी, अभी आपने जो सवाल पूछा है, नॉर्मली रिज्यूमे में जो होता है, सबसे पहले मेरे सभी दोस्त या जो प्रबुद्ध प्रोफेसर लोग से जुटे हुए हैं तो उसको बताऊं, वो कॉमन होता ही है। जैसे हेडिंग होता है जिसमें हमारा नाम, मेल आईडी और मोबाइल नंबर होता है, जिसपे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हम एंड में लिखते हैं, अभी हेडिंग में नहीं लिखते हैं। इसके अलावा सबसे पहली बात होती है वो है करियर ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, यहाँ पे हमको करियर ऑब्जेक्टिव शब्दों को समझना भी बहुत आवश्यक हो गया है। मैं धीरे धीरे जाऊंगा, आपका समय लूंगा, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, और हाँ, मैं यहाँ पे कुछ बेचने नहीं आया हूँ, सबसे पहले बता दो, क्योंकि मेरा पैसा तो टेकॉइड ने दे दिया है। सो आई एम नॉट हियर टू सेल एनीथिंग। लेकिन एक बात है, जब मैं पैसा लेता हूं तो बहुत आराम से आपके साथ एक संवाद प्रस्थापित करूंगा। दोस्तों, बात यह है करियर ऑब्जेक्टिव। यदि मैं मनोज जी से पूछूं, मनोज जी आपकी करियर कितने साल की हो गई, तो मनोज जी बोलेंगे 15 साल 20 साल। मतलब उसका जो जवाब है वो समय का एक टुकड़ा है, समय की अवधि है। इट्स अ स्पान ऑफ टाइम। मतलब करियर इज नॉट ए डेस्टिनेशन, करियर इज ए जर्नी। ये कोई जगह का नाम नहीं है, कारकिर्दी एक यात्रा का नाम है। और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है हमारा हेतु, हमारा ध्येय। मतलब एक करियर खत्म होने के बाद मुझे क्या चाहिए, या फिर वो कौन सी चीज है जिसको प्राप्त करने के लिए मैं ये यात्रा कर रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहला हेडिंग, बाद में आएगा करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव आपको तीनों लैंग्वेज में, आपकी मदर लैंग्वेज यानी जो आपकी मातृभाषा है, इसमें आपकी राज्य की भाषा या हिंदी में, और आपको इंग्लिश में, तीनों लैंग्वेज में आनी चाहिए। हमसे ज्यादा स्मार्ट इंटरव्यूअर होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे ही फॉर एग्जांपल परेश भट्ट करके कोई एक लड़का है, वो इंटरव्यू देने गया है और पूछेंगे, यस जेंटलमैन, व्हाट इज योर करियर ऑब्जेक्टिव। मैं घर से रट्टा मार के गया हूं। तो रट्टा मार के जब जाऊंगा तो क्या करूंगा, आई विल बी वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। मैं सवाल के लिए वेट करता रहूंगा। द मोमेंट इंटरव्यूअर विल आस्क मी द क्वेश्चन, यस जेंटलमैन, व्हाट इज योर करियर ऑब्जेक्टिव, और हमारी गाड़ी निकल पड़ेगी। सर, आई वांट टू वर्क विद द ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन एस्टैब्लिश माय सेल्फ, ब्ला 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 ब्ला। तो समझ जाएगा कि इतना पावरफुल फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, तो वो शायद रट्टा मार के आया है। तो वो क्या बोलेगा, कुछ समझ में नहीं आया, जरा हिंदी में बताओ। अब जो रट्टा मारा है इसका हिंदी या गुजराती में कैसे करूंगा। और इसीलिए विथ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू प्रिपेयर आवर करियर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मोर देन 90% ऑफ द रिज्यूमे और सीवी आर कॉपी कट पेस्ट। एक कट पेस्ट वाला जो रिज्यूमे बनता है मालूम हो जाता है। नंबर 3 इज अ समरी ऑफ द क्वालिफिकेशन, और इट शुड बी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे हाईएस्ट आपका जो क्वालिफिकेशन है वो सबसे ऊपर, नीचे 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 नीचे। एक टेबल बनाओ और टेबल में आपका डिजिग्नेशन की डिग्री, कौन से साल में पास किया, कौन सी इंस्टीट्यूशन से पास किया, कौन सा सब्जेक्ट था, कौन सा परसेंटेज मिला है, और इसके अलावा कुछ ज्यादा आपने, मान लो आपको गोल्ड मेडल मिला है, कोई सर्टिफिकेशन मिला है, तो वो सब कुछ एक टेबल फॉर्म में बनाना चाहिए ताकि क्लियरली उसको दिखाई पड़े। The person interviewer can see very clearly. इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस में डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आज जहां पे मैं काम कर रहा हूं वो सबसे पहले, और धीरे 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 उसको नीचे आना चाहिए। इसके अलावा यस, स्किल होनी चाहिए। और यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए सभी दोस्तों को मैं बताऊंगा
स्किल आपको ऐसी लिखनी चाहिए जो हमको जॉब दिला सके। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए वेरी गुड ट्रेनर, तो मुझे स्किल लिखनी चाहिए, आई एम ए वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, आई एम वेरी गुड एट पब्लिक स्पीकिंग, आई एम वेरी गुड एट डेटा एनालिसिस XYZ। लेकिन मान लो, इफ आई एम ए वेरी गुड डांसर, आई एम ए वेरी गुड सिंगर, but very good singing is definitely my skill, but it is not going to give me the job, मुझे नौकरी देने वाला नहीं है। तो मुझे अपनी रिलेवेंट स्किल लिखनी चाहिए। 3 प्रकार की स्किल होती है, एक होती है टेक्निकल स्किल, दूसरी होती है प्रोफेशनल स्किल और तीसरी होती है लाइफ स्किल। ये तीनों स्किल को खुद को रेटिंग करके देना बहुत एडवाइजेबल और आवश्यक होगा। इसके अलावा यदि आपको कुछ ऑनर्स, अवार्ड मिले हैं, सर्टिफिकेट मिले हैं, तो आपको मेंशन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एनीबॉडी हु इज C सर्टिफिकेट पास विद एनसीसी का C सर्टिफिकेट का पास किया हुआ बंदा बाय डिफॉल्ट हम समझ जाते हैं डिसिप्लिन्ड बंदा होगा, वरना एनसीसी का C सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं मिलता है। तो ऑटोमेटिक हमारी एक क्वालिटी सामने रखने में हमको एक हेल्पफुल होता है। हॉबी और रेफरेंसेस होते हैं और बाद में डिस्क्लेमर होता है। इतनी चीजें होती है, लेकिन इससे ज्यादा एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आजकल सिर्फ इंटेलिजेंट क्वेश्चन पे हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, इमोशनल क्वेश्चन, हम समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट करते हैं वो भी बताना आवश्यक होता है। और इसीलिए आजकल का जो नया एक ट्रेंड चल रहा है, इसमें आपका सोशल कंट्रीब्यूशन आपको लिखना आपके जॉब को प्राप्त करने के लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप सोशली कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो आपको लिखना चाहिए। ओवर टू मनोज सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर मेंशनिंग दी डिटेल्स। एंड आपके इस सवाल, आपके जो ये पूरा इस सवाल को आपने जिस तरीके से लिया, आपने ऑलरेडी एक जवाब दे चुके हैं। हमारे साथ एक मिस रक्षा हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा था कि हाउ टू मेक योर रिज्यूमे अट्रैक्टिव एंड लीक से हटकर वो कैसे रिज्यूमे दिखे। सो I'm sure you have already answered the question, and if time permits, I request to Tecoit पारस सर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक दो ऐसे रिज्यूमे भी जरूर बताएं जिससे कि एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन हो पाए। एंड मनोज जी सर, यहाँ मुझे लगता है कि एक बात कहना बहुत आवश्यक हो गया है, और विथ योर परमिशन, इवोल्यूशन रिवॉल्यूशन इन द जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट बोलना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बताऊंगा तो इट वुड बी बेटर। और विथ योर परमिशन आपका मैं 2 मिनट लूंगा। देखिए दोस्तों, in 1994 when I was searching the job, there was an advertisement in the local newspaper that Kerala Laboratories, which was considered as the second largest pharmaceutical company of our nation, वहां पे उसको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की रिक्वायरमेंट थी। तो उसमें न्यूज़पेपर में एक जाहिर खबर आई थी कि अपना बायोडेटा भेजे। तो मैं तो देहात में रहता था, तो नजदीक में जो हमारा एक भावनगर करके एक प्लेस पड़ता है, मैं वहां गया और टाइप क्लास में जाके अपना बायोडेटा बनवाया था, और बायोडेटा मैंने भेजा, और बायोडेटा से वहां यहाँ पे इंटरव्यू टेलीग्राम आया, यू हैव टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू ऑन दिस डेट दिस प्लेस। मैं गया और बात आगे बढ़ी। मतलब बायोडेटा was the first job application format। बाद में कुछ साल बाद रिज्यूमे आया। ये रिज्यूमे है जिसमें करियर ऑब्जेक्टिव होता है और कुछ ऐसी बातें होती है जो हमारा चरित्र निर्माण के लिए एक क्लैरिटी दिखाई पड़े। तो रिज्यूमे इज द सेकंड जनरेशन जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट। बाद में तीसरा आया और वो है सीवी यानी कि कैरिकुलम विटे, जिसमें सर ने अभी बताया, और इस प्रश्न के बारे में हम बात भी करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस रिज्यूमे एंड सीवी। लेकिन सीवी इज द थर्ड जनरेशन। अभी फोर्थ जनरेशन चल रहा है, लेकिन इसकी स्वीकृति कम है, वो है वीडियो रिज्यूमे। दोस्तों, हमको 2 मिनट का खुद को वीडियो बनाना पड़ता है और इसमें 2 प्रश्न का जवाब देना पड़ता है। एक सवाल होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और दूसरा होता है व्हाट इज योर करियर ऑब्जेक्टिव। ये दोनों को मिला के हम वीडियो बनाते हैं, और वो वीडियो जब इंटरव्यूअर को भेजते हैं तो वो हमारा कम्युनिकेशन, हमारी पर्सनालिटी, ये सब कुछ चेक कर पाते हैं, और इसके हिसाब से हमको इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू कॉल आता है। तो दिस इज द 4th जनरेशन जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट। अब मार्केट में आ गया है
5th जनरेशन जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट, और ये 5th जनरेशन जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो है वेब रिज्यूमे। और वेब रिज्यूमे होता है उसमें सिर्फ एक लिंक बनती है और वो लिंक हमको इंटरव्यूअर को भेजनी होती है, और वो लिंक जैसे ही इंटरव्यूअर यानी कि एम्प्लॉयर क्लिक करेंगे तो उसके सामने एक वेब पेज ओपन हो जाएगा, और वो वेब पेज है इसमें सब कुछ होगा, इसमें वीडियो रिज्यूमे भी होगा, इसमें पीडीएफ वाला रिज्यूमे भी होगा, ये सब कुछ होगा। तो मैं डेकोइट एंटरप्राइज के डॉक्टर कोठारी को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मैंने आपको जो लिंक एक भेजा था वो जरा www.aptitude.in/meha-kotecha या फिर मेरा वो जो रिज्यूमे है वो जरा एक लिंक ओपन करके स्लाइड स्क्रीन शेयरिंग में बताइए प्लीज। जी परेश भाई, जस्ट गिव मी अ मिनट। हियर इट इज परेश भाई। यस सर, आपने तो मेरा ही देखो दोस्तों, ऊपर जरा आईपी एड्रेस है ना, आईपी एड्रेस पे जाओ आप सर, इसको जरा, हाँ देखो www.aptitude.in/pareshbhatt ये मेरा ही लिंक है, और आप अपने मोबाइल में भी fgtu.in/pareshbhatt करेंगे तो आपको ये जो है वो आपको मेरा रिज्यूमे आपको दिखाई पड़ेगा। सो ओके, दिस इज अ परेश भट्ट। अभी आप नीचे देखो, मेरा फोटोग्राफ यहाँ पे है, मेरा करियर ऑब्जेक्टिव है, इसके अलावा बर्थ डेट, ये सब कुछ है। डाउनलोड माय प्रिंटेबल रिज्यूमे जो है, यदि वो एचआर मैनेजर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो उसको कर पाएंगे। ये बगल में जो वॉच माय वीडियो रिज्यूमे है वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा वीडियो रिज्यूमे दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे मेरी सोशल मीडिया लिंक मैंने नहीं की है, सिर्फ फेसबुक है, लेकिन यहाँ पे ट्विटर या लिंक्डइन आप अपनी एक क्लिक कर सके लगा सकते हो तो वो भी हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर इसको लीजिए। This is something about myself Paresh Bhatt, working with in the area of corporate training। या खुद के बारे में मैं बताता हूँ। उसके राइट साइड में देखेंगे तो टेक्निकल, प्रोफेशनल और लाइफ स्किल है। उसमें भी मैंने जो 3 स्किल हर एक बात में है, खुद को सेल्फ रेटिंग दिया है कि मेरा ये सेल्फ रेटिंग है। टीचिंग में मैं 100% हूँ, काउंसलिंग में 80% हूँ, कंटेंट डेवलपमेंट में 80% मेरी एक्सपर्टी है। इन द सेम वे प्रोफेशनल और लाइफ स्किल में भी है। और भी ऊपर जाएंगे तो माय एक्सपीरियंस, माय एजुकेशन एंड लैंग्वेजेस नो। देखो दोस्तों, मैंने जैसे ही बताया था कि एक्सपीरियंस में जाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, कौन सी कंपनी में कौन सी डेजिग्नेशन से कब से लेके कब से तक हमने काम किया है, कौन सा सिटी में कौन सा स्टेट में, और खास करके KRA जो फ्रेशर्स है इसके लिए ये शब्द शायद नया होगा। KRA का मतलब होता है की रिजल्ट एरिया। दोस्तों आपकी थोड़ा सा ये जार्गन भी आपको रट्टा मारना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। KRA, KPI, जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब GD, ये सभी चीजें आपको कोडवर्ड में बताया जाएगा। थोड़ा सा एजुकेशन के ऊपर जाएंगे तो ये भी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है, BSc, HSC और SSC। यदि हम लैंग्वेजेस नोन में जाएंगे तो देखो दोस्तों, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा आप सिंधी पे देखिए। आई कैन नॉट रीड, राइट और स्पीक सिंधी बट आई कैन अंडरस्टैंड सिंधी लैंग्वेज। तो ये जो है वो पूरी की पूरी मेरी एक दिखाई पड़ती है कि हाउ आई एम डीलिंग विद द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ माय लैंग्वेजेस एंड ऑल। थोड़ा सा आगे बढ़ाइए इसको सर। दिस इज माय फोटो गैलरी। ये मेरी कुछ फोटो गैलरी है, रेडियो न्यूज़पेपर में जो मेरी आती है कटिंग आती है, ये सभी मेरे न्यूज़पेपर में है। थोड़ा सा और भी आगे बढ़ाइए सर। ये मेरे रेफरेंसेस है, ये दोनों रेफरेंसेस हमारे गुजरात के बहुत से प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल और उसके डायरेक्टर का है। नॉट ओनली दिस, उसकी फोटो, उसका मोबाइल नंबर, उसने मेरे बारे में बताई हुई कमेंट भी है कि always new and fresh idea to create youth more employable in the success factor of the advice and ask। इस प्रकार से this gentleman has given the comment on myself। इससे भी और ज्यादा जाएंगे तो मेरा सामाजिक प्रदान है, social contribution। I am working as an advisor with Finar Foundation, which is one of the reputed NGO of our Gujarat state। और भी आगे जाएंगे तो मैं गुजराती केळवणी परिषद, दोस्तों 105 साल पुरानी ये संस्था है और हमारे देश के राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी की इंस्पिरेशन से इंदुलाल याग्निक ने शुरू की थी, और ये 105
साल पुरानी जो संस्था है आज भी एक्टिवली काम करती है और मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं उसका एक्टिव मेंबर हूं। नॉट ओनली एक्टिव मेंबर, आई एम ए होल्डिंग सम पोस्ट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। इससे और भी आगे जाएंगे तो मैंने गुजराती में पुस्तक भी लिखा है। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी में मेरी परेश की पाठशाला करके जो सीरीज चल रही है तो इसके बारे में ये भी है। इसके अलावा मेरी स्ट्रेंथ, आई एम अ वेरी गुड क्रिटिकल थिंकर, आई हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पब्लिक स्पीकिंग, माय हॉबीज। और भी थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। तो सर एफिलिएशन में कौन सी ऐसी संस्था है जिसके साथ जुड़ के मैं काम कर रहा हूँ, ये सब कुछ चीज जब हम दिखाएंगे तब जाके हमको इंटरव्यू कॉल आएगा। सर और भी कोई मुझे बताइए मेरे अलावा, ताकि और भी इसको हम दिखाई पाए। यस फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इसने मेरे से भी अच्छा एक रिज्यूमे बनाया है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा इसके जो आईपी एड्रेस है इसके ऊपर जरा आप क्लिक करिए सर, www.fgtu.in/meha.kotecha। इसका वीडियो रिज्यूमे आप प्ले कर सकते हो तो प्लीज। देखो दोस्तों, अब वीडियो रिज्यूम प्ले होगा, आपको साउंड वीडियो का देना पड़ेगा। My video resume. My full name is Meha Mukesh Kotecha. I am a student and I come from Rajkot. I am pursuing the degree of Bachelor of Science with Mathematics as main subject from Sri Amit and Virani Science College, affiliated to Saurashtra University, and I am about to graduate this year. I am extremely passionate about making a contribution for the generations to come, and thus my career goal goes with education field. I have been working with EduCrafters Career Institute as a faculty of mathematics in secondary section since 2017. Therefore, my technical skills include teaching, counseling, institution management, and many more. Moreover, real and complex analysis, algebra, geometry, calculus, and topology are few of my skills in my main domain. As a result of experience in this field, I have gained a good amount of professional strengths like teamwork, resilience, effective communication, leadership, mentorship, strong work ethic, and many more are on the way. Concluding my video resume, I hereby state my career objective, that is, to excel in the field of education as a faculty of mathematics in order to establish myself financially, socially, and professionally, and to become a compassionate, intellectual, and resourceful individual. You can check out my web resume at the given link. Thank you. थैंक यू कोठारी सर। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से यदि हम वीडियो रिज्यूमे देखते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन हम शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मार्केट में ये कुछ नया चल रहा है, इस नई चीज को आप भी स्वीकार कर दीजिए और समय के साथ चलिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, समय के साथ चलो, ये बात बहुत पुरानी है। मुझे लगता है कि डार्विन का उत्क्रांतिवाद जो था वो डार्विन कहता है फिटेस्ट विल सर्वाइव, लेकिन मैं कहता हूं कि नाउ दिस इज न्यू नॉर्मल, और न्यू नॉर्मल में फिटेस्ट एंड फास्टेस्ट विल सर्वाइव, ये कुछ नया मंत्र है। अब फास्टेस्ट होना पड़ेगा, सिर्फ फिट होने से कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है कि फास्टेस्ट होना पड़ेगा। तो दोस्तों, यू विल हैव टू एक्सेप्ट द चेंज वेरी फास्ट। सेकेंडली, यहाँ जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं जिसके पास अपना खुद का एक तजुर्बा है, उन लोगों को भी मैं कहता हूँ, योर रिज्यूमे शुड बी परफेक्ट, यू विल हैव टू प्रिपेयर योर रिज्यूमे एट लेंथ, और इस प्रकार से अपने आप को एक
नए मोड़ पे, नए मुकाम पे, नए स्टेज पे, नए लेवल पे ले जाना पड़ेगा, बिकॉज फिटेस्ट एंड फास्टेस्ट विल सर्वाइव इन न्यू नॉर्मल। ओवर टू मनोज सर, यदि कोई सवाल है तो यू हैव ऑल द राइट। नाउ लेट अस थ्रो द क्वेश्चंस एंड आई विल थ्रो द आंसर। डेफिनेटली सर, एंड आई एम श्योर कि जैसा कि हमने फर्स्ट टाइम पे बात की थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जो फ्यूचर है इट इज नॉट नॉलेज बेस्ड बट ये स्किल बेस्ड भी होगा, तो आपने बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी लगा होगा कि रिज्यूमे के क्या अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं एंड हाउ टू पुट इट। एंड डेफिनेटली विल बी मूविंग टू क्वेश्चंस फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स। हम उन क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे और उसी में जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है सर, दैट इज, अब जैसे हम न्यू नॉर्मल की बात कर रहे थे, तो न्यू नॉर्मल में जब लोग घर पे थे या फैकल्टी, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स की बात करें तो बहुत सारे सर्टिफिकेशंस उन लोगों ने किए ड्यूरिंग लास्ट 3 to 4 months। तो ये जो शॉर्ट लर्निंग है, चाहे वो किसी की भी हो, प्रोफेशनल की हो, स्टूडेंट की हो, ये सारे जो वेबिनार्स के जो सर्टिफिकेशंस हैं शॉर्ट लर्निंग के, क्या हम इनको रिज्यूमे में ले सकते हैं? और अगर इनको रिज्यूमे में लेते हैं तो व्हाट आर द वेज थ्रू व्हिच वी शुड टेक इट? किस फॉर्म में हम इन सारी चीजों को अपने रिज्यूमे में इंडिकेट करें? यस, मुझे लगता है कि ये बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एन इंजीनियर और इंजीनियर में आपने कुछ ऐसा सर्टिफिकेशन कोर्स किया है तो ये बिल्कुल होना चाहिए। और आप यदि FGTO वाला पोर्शन जो है देखेंगे तो इसमें सर्टिफिकेट एप्लीकेशन का एक सेपरेट एक जगह ही दिया गया है, और वो जगह पे यदि आप जाएंगे तो आप अपना सर्टिफिकेट को अपलोड भी कर पाएंगे। नॉट ओनली दैट, इस सर्टिफिकेट के बारे में आप डिस्क्रिप्शन भी लिख पाएंगे। दोस्तों, मुझे लगता है यदि आपने कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन किया है तो बिल्कुल आपको उसको अपना रिज्यूमे में जगह देना होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ एक्सप्रेशन। अभिव्यक्ति के समय में हम जिंदा है, तो हमको अपने पास जो भी हमारे हिस्से में पड़ा है, हमारे पॉकेट में, एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा। Yes, sir. That's thank you sir, and I would also like to thank Mr. Chandresh जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, बिकॉज अभी बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हो गए, ऑलमोस्ट कम से कम मुझे लगता है हर व्यक्ति के पास जो कि एक्टिव रहा होगा पिछले 3-4 महीनों में, कम से कम 20 या 25 ऐसे सर्टिफिकेशंस होंगे। सो यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि जो रिलेवेंट है आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, यू शुड डेफिनेटली मेंशन इट। सेकंड जो सर इसमें पार्ट आता है कि अब ये सारी जो चीजें जो आपने बताई, दैट इज हम इंक्लूड क्या क्या करें, और बट क्या कोई ऐसी चीज है जिसको हमको एक्सक्लूड करना चाहिए? और इसी के साथ मैं कहूँगा जो हमारा एक क्लोजिंग क्वेश्चन रहेगा, जो ऑनरेबल VC साहब ने कहा था कि आप बच्चों को ये भी बताएं कि CV और रिज्यूमे में क्या डिफरेंस रहेगा। सो आई एम श्योर इन 2 सवालों के साथ विल बी क्लोजिंग इट डाउन, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रेशियस। हम ऑलरेडी वी हैव क्रॉस द टाइमलाइन, बट डेफिनेटली जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर कोई ऐसा आपको लगता है क्वेश्चन, सो वी विल श्योरली टेक इट सर। यस सर, सबसे पहला सवाल था व्हाट शुड नॉट बी देयर ऑन द रिज्यूमे। रिज्यूमे में क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो तो सही बात है, क्या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जरा गौर से इस बात को देखना, मैं गंभीरता से बोल रहा हूं। सबसे पहली बात है वो है हमारी फोटोग्राफ। हमारा फोटोग्राफ फैंसी नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल लुक वाला फोटोग्राफ होना चाहिए। कभी कभी हम सेल्फी वाली फोटो भी लगा देते हैं, या फिर कहीं पे जाके हमने जंगल में जाके कुछ तूफान किए हैं तो ऐसे फोटो लगा देते हैं। So friends, our photograph should be very professional. Number 2, our email ID. Our email ID also should be very professional. मुझे बहुत से ऐसा आता है tarzan@gmail.com। अरे भाई क्या बात है, hero@gmail.com। तो दोस्तों हमारा ईमेल आईडी है, हमारा फोटोग्राफ है, वो दोनों चीज प्रोफेशनल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जैसे कि धीरे से मैंने इस बात को टच करके छोड़ दिया था, लेकिन अब थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। हमारे पास जो स्किल है वो स्किल प्रोफेशनल स्किल होनी चाहिए। प्रोफेशनल स्किल का मतलब होता है कि हमको वो स्किल नौकरी दिलाने में या नौकरी मिलने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने में काम आए। इस प्रकार की हमको जो
स्किल है उसको मेंशन करना पड़ेगा। इससे ज्यादा और एक एसोसिएशन या एफिलिएशन, फॉर एग्जांपल आई एम ए ट्रेनर और मैं ट्रेनिंग के व्यवसाय में काम कर रहा हूं, इफ आई एम ए मेंबर ऑफ अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं, यदि मैं किसी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो ये सभी चीजों को यहाँ नहीं लाना चाहिए। नॉट ओनली दैट, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे वहां पर भी आपको अपना जो रिलीजियस या अपना जो स्पिरिचुअल वर्ड्स है या फिर अपना जो कुछ बिहेवियर है वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस कंपनी इज फॉर द प्रॉफिट, it is not for the charity. So we will have to prove ourselves from professional person point of view. तो दोस्तों मुझे लगता है कि हमको प्रोफेशनली बिहेव करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया था दोस्तों कि टाइम इज चेंजिंग, न्यू नॉर्मल में फिटेस्ट एंड फास्टेस्ट विल सर्वाइव। मैं आपको न्यू नॉर्मल की और भी एक छोटा सा मंत्र आपके कान में बताना चाहूंगा। दोस्तों पहले के समय में हुआ करता था टाइम मैनेजमेंट। नाउ टाइम मैनेजमेंट इज आउट, नाउ टास्क मैनेजमेंट हैज एंटर्ड। आपको नौकरी में जाने के बाद टास्क मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट तो प्यून चपरासी से लेके प्रेसिडेंट सबको करना ही पड़ेगा। इट इज गोइंग टू बी बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग ऑफ आवर करियर। लेकिन इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग द टाइम, मैं रिजल्ट कर सकता हूं, रिजल्टेड, तो हमको न्यू जनरेट करने के लिए, हेलो मुझे लगता है एम आई ऑडिएबल? यस सर, ऑडिएबल सर? यस सर। ओके, तो फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ creating the result, we will have to create the revenue. तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट इज आउट, टास्क मैनेजमेंट हैज एंटर्ड एंड रेवेन्यू जनरेशन हैज एंटर्ड, रिजल्ट ओरिएंटेशन इज आउट। रिजल्ट ओरिएंटेशन करना है, इसलिए तो सरकार, कंपनी, कोई भी XYZ एम्प्लॉयर है, दे आर गोइंग टू गिव अस द जॉब। तो दोस्तों मैंने और भी एक बात बता दी। अब आते हैं हमारे सवाल पे। जैसे कि सर ने बताया था रिज्यूमे होता है वो 1 पेज का होता है, यानी कि हम फ्रेशर्स हैं तो फ्रेशर्स के पास ज्यादा इतना तजुर्बा नहीं होता है, तो करीबन 1 से मैक्सिमम 2 पेज का होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आपका तजुर्बा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप अपने आप को पहचानते जाएंगे, दैट व्हाट इज माय स्वॉट, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपको यहाँ पे मेंशन करने के लिए अंदर से वो एक जागरूक होना पड़ेगा, और जैसे ही आप लिखना चालू करेंगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू करिकुलम विटे, यानी कि CV। नंबर 1। नंबर 2 CV में हमको ये दिखाना है व्हाई आई एम द राइट कैंडिडेट फॉर दिस योर पोस्ट। क्योंकि दोस्तों हमको वो ही दिखाना है जो उसको चाहिए। जेडी का मतलब होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, और जेडी वाले जो जार्गन्स होते हैं वो जार्गन्स हमको अपने रिज्यूमे में डालना है। तो नटशेल में बात करें, फ्रेशर्स के लिए रिज्यूमे होता है, और जैसे 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 हमारा तजुर्बा, एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, ऑटोमेटिकली इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू करिकुलम विटे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आई नो देयर आर टाइम बाउंडेशन, बट इसी में we'll take one or two few questions also in this Please, line. एक जो हमारे पास नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है दैट, और जो हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने भी इसको चेक किया है कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन रिज्यूमे है उसमें पहली चीज तो कि और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि सारे स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स ध्यान रखें, ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके साथ वो कनेक्ट हो सकते हैं, दैट इज वन। एंड सेकंड इज आई वुड आल्सो लाइक टू वेलकम यू कि आप नेक्स्ट जनरेशन रिज्यूमे के बारे में क्या सोचते हैं, एंड व्हाट इज आपने जो जितने भी इनोवेटिव स्टेप्स लिए उनके बारे में भी आप अगर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को बता पाएं, दैट वुड बी वेरी बिल्कुल यूजफुल। ये देखो दोस्तों, ऐसा है
कि ये जो वेब रिज्यूमे, नेक्स्ट जनरेशन जो रिज्यूमे है, वेब रिज्यूमे के कुछ बहुत से फायदे हैं, और वो फायदे में से 2-3 फायदा मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला नंबर 1 फायदा, हम एक छोटा सा रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जाते हैं, फैमिली मेंबर कहते हैं कि हमको XYZ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, तो हम सबसे पहले गूगल करते हैं और गूगल में देखते हैं विच आर द स्टार रेटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट। हम मूवी देखने जाते हैं तो इसके रेटिंग चेक करते हैं। मतलब नाउ वी आर सर्चिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी 1,000 रुपये का 2,000 का खर्चा करने वाले लोग भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कंपनी रेस्टोरेंट या फिर मूवी को चेक करते हैं। हमको 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख की तनख्वाह देने वाला कोई इंसान डिजिटली हमको चेक करेगा या नहीं करेगा, नंबर 1। तो हमको नेक्स्ट जनरेशन जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट यानी कि वेब रिज्यूमे बनाना क्यों आवश्यक है? नंबर 1, employer will search us on digital platform, number 1. Number 2, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यदि मान लो किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, आंखें बंद करके मेरा प्रश्न है उसका जवाब अपने आप को दो कि यदि आज की तारीख में मुझे कोई डिजिटली प्लेटफॉर्म पे कोई सर्च करेगा तो मैं कहाँ मिलूंगा? शायद फेसबुक पे या और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मेरी प्रोफेशनल प्रेजेंस नहीं है। देखो दोस्तों, प्रोफेशनल डिजिटल प्रेजेंस होना बहुत आवश्यक होता है, तो ये जो है वेब रिज्यूमे वो उसका सही जगह है। नंबर 3, मान लो मैंने आपकी कंपनी में 15 दिन 20 दिन पहले मेरा रिज्यूमे भेजा है, ये लिंक वेब रिज्यूमे की www.fgtu.in/paresh Bhatt 15 दिन 20 दिन पहले मैंने भेजा है। कल रात को मुझे या कल शाम को या कल के दिन में मुझे किसी ने अवार्ड दे दिया, महामहिम राज्यपाल श्री के कर कमलों से मुझे नवाजा गया, वो फोटो आ गई। लेकिन 15 दिन पहले जहां पे रिज्यूमे मैंने भेज दिया था, अब मैं वहां से कैसे भेज पाऊंगा? लेकिन यदि मैंने वेब रिज्यूमे बनाया है तो मैं मेरे बैकएंड में जाके इस फोटो को अपलोड करूंगा कि पूरे विश्व में जहां जहां पे मेरी वेब रिज्यूमे की लिंक गई है वहां वेरी नेक्स्ट मोमेंट पे वो चेंजेस हो जाएगी। मतलब जब भी कोई HR मैनेजर मेरी रिज्यूमे लिंक ओपन करके देखेंगे, हर बार उसको फ्रेश रिज्यूमे मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे नंबर 1 बात है हमारी एक डिजिटल प्रेजेंस होनी चाहिए, दूसरा प्रोफेशनल डिजिटल प्रेजेंस होनी चाहिए, और तीसरा इसको हम हर बार अपलोड कर सकते हैं। और भी एक बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम कहते हैं लिंक्डइन। लेकिन एक सर्वे आया है कि जितने भी लोग हैं वो लिंक्डइन में एक बार प्रोफाइल बनाने के बाद सिर्फ 4% लोग ऐसे होते हैं जो समय समय पे इसको अपग्रेड करते हैं। 96% एक बार बना दिया, बात खत्म। और इससे भी एक बात कि यदि आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना रिज्यूमे बनाया है तो वो लिंक आप लिंक्डइन पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लिंक्डइन किसी ओपन करेंगे तो वहां से ये आपका कनेक्शन भी हो जाए। तो मनोज सर, these are the benefits of this web resume, sir. Thank you, sir, for explaining the benefits. And now I open the platform. अगर हमारे कोई भी participants हैं जो direct question पूछना चाहते हैं expert से, the platform is open. आप अपने आप को unmute कर सकते हैं. Video on करना is up to you. You can directly ask questions to our expert, and this window will be only for next 5 to 10 minutes. Depending upon queries. मनोज जी, हम 5 सवाल लेंगे, 5 सवाल के बाद, और मुझे लगता है बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, तो Surely, sir. 5 सवाल इसको लेते हैं। So over to you. Definitely, sir. Okay. So now the dais is open. अगर कोई भी participants question पूछना चाहते हैं,
either they can raise the hand or they can unmute themselves and introduce themselves. Okay, Shivani Bhatt हमारे साथ है. She want to ask some question. Madam, please you can unmute yourself and you can ask the question. Yes, sir. Sir, I just want to know that what is what we have to do in CV, and apart from that, we have to add something in resume. शिवानी जी, आपका प्रश्न यदि मैं जो समझा हूँ इसको थोड़ा सा डायल्यूट कर दूं, तो आप ये पूछना चाहते हो कि हमको ऐसा कौन सी चीजें डालना चाहिए अपने रिज्यूमे में या फिर सीवी में. इज इट द क्वेश्चन मैडम? यस सर. यस मैडम, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा हेडिंग से लेके डिक्लेरेशन तक की जो बात है वो तो हमको चाहिए, लेकिन मैं आपको आपके माध्यम सवाल के माध्यम से सभी को बोलना चाहूंगा, दोस्तों बिलो में नाउ न्यू नॉर्मल है और न्यू नॉर्मल में सिलेक्शन प्रोसेस के क्राइटेरिया चेंज हो गए हैं. सबसे पहले के समय, आज से 25 साल पहले, किसी का बुद्धिआंक बहुत अच्छा हुआ करता था तो इसका हम कहते थे IQ, और जिसका IQ बहुत बड़ा होता है इसको हम महान मानते थे. लेकिन सिर्फ IQ से कुछ नहीं होता है, वो समय ने साबित कर दिया है. तो नाउ कंपनी इज आस्किंग फॉर द इमोशनल क्वोशंट EQ. और EQ हम किस प्रकार से बता पाएंगे? शिवानी जी, आप समाज को क्या प्रदान करते हो? मान लो आपके पास बहुत अच्छा IQ है तो आप एटम बम भी बना सकती हो, आप कोरोना वायरस भी बना सकती हो, जो समाज के लिए, मानव जात के लिए नुकसानकारक है. और इसीलिए कंपनी मांगती है आपके पास इमोशनल क्वोशंट होने चाहिए, और इमोशनल क्वोशंट दिखाने के लिए हमको सोशल कंट्रीब्यूशन, आपकी हॉबी, ये सब कुछ चीजें हमारा एक अलग सा व्यक्तित्व बताती है. और ये व्यक्तित्व है ना, वही तो हमको एक स्टेबल जॉब के और आगे ले जाती है. Yes, thank you very much. I'm sure I have answered. But sir, you don't think that resume and CV are just similar in some apart from thing? Madam, yes, madam. Like CV also asks this type of things also. हाँ, मैंने बोला ना, देखो यहाँ पे ऐसा कोई वो बात नहीं है कि सीवी है तो आप सोशल कंट्रीब्यूशन नहीं डालेंगे और रिज्यूमे है तो डालेंगे. हमारा जो एक व्यक्तित्व है, हमारी जो एक पर्सनालिटी है, हमारा एक चरित्र है, वो तो चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो, वो तो सेम रहने वाला है. तो आपको वो तो लिखना ही चाहिए. और मुझे लगता है 1 पेज से ज्यादा बढ़ के 2 पेज तक जाता है, दैट इज नॉट एन इश्यू. लेकिन लिखना चाहिए, क्योंकि आने वाले जो समय है वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे जा रहा है, पूरी इंडस्ट्री इस ओर जा रही है. और नॉट ओनली दैट, वी विल हैव टू आल्सो डेमोन्स्ट्रेट दिस वैल्यूज. Okay sir, my last question sir, if I have want to start my career in government job, I want to pursue my career in government job, then what is my would be my resume or would be my CV? मैम, थोड़ी सी इस बात का जवाब मैं अलग से दूंगा. देखो, मुझे राजस्थान की परिस्थिति की कोई मालूम नहीं है कि कितने परसेंटेज लोग को जॉब मिलती है. इफ आई टॉक अबाउट द गुजरात की मैं बात करूं तो हम यहाँ पे तहसीलदार यानी कि तलाटी मंत्री की अभी 2 साल पहले के फिगर्स थे, और वो फिगर था 6000 लोगों को नौकरी चाहिए थी. सो गवर्नमेंट हैज ओपन द 6000 प्लेसेस. 18 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, 12 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था. 12 लाख में से 6000 लोगों को नौकरी मिली, मतलब 0.5% को जॉब मिली. अब 0.5% को जॉब मिली, ये अच्छी बात है, लेकिन 99.5% को जॉब नहीं मिली, वो एक अलग बात है. और इसीलिए मैं कहता हूँ आपको गवर्नमेंट की एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है. सलाम है, कोई बात नहीं, मिलनी चाहिए, और मुझे मिलेगी तो भी मुझे अच्छे लगेगी. लेकिन यदि
इसके ऊपर बैठे रहेंगे तो हमारे जिंदगी का प्रीशियस अमूल्य टाइम हाथ से चला जाएगा। तो नंबर 1, नंबर 2, आपने बताया कि सीवी में क्या होना चाहिए। वहां पे सीवी इतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि कॉर्पोरेट में सीवी का इतना मायने होता है। यहाँ पे आपको एक गवर्नमेंट की जो पूरी गाइडलाइन है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके बाद उसकी परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद आपको वो आगे बढ़ेगा। और जब तक मेरी समझ है, क्लास 3 ऑफिसर में आमने सामने यानी कि पर्सनल इंटरव्यू होता ही नहीं है, सीधा ही ऑफर लेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द क्लास 2 और क्लास 1 ऑफर, तो आपको लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट करना बहुत आवश्यक होगा। मुझे लगता है वहां इतना सीवी और रिज्यूमे को इतना वजूद दिया नहीं जाता है। Oh, thank you, sir. Rightly said, sir. Thank you very much for handling the queries, and I would also request all participants कि आपकी और भी queries हैं, so we are always open for the queries. आप Techoid की website पर जाकर हमको queries लिख सकते हैं. We'll make sure कि हम आपको expert की तरफ से आपके सारे सवालों के जवाब मिले, and क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, so I would like to thank परेश भट्ट साहब for their valuable time, and I would also like to thank the university जिन्होंने इतना परिश्रम करके और सारे एक्सपर्ट्स को, सारे फैकल्टी मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को हमारे साथ जोड़ा। थैंक यू वेरी मच, एंड आई वुड लाइक टू हैंड इट ओवर टू पारस भट्ट सर। हाँ दोस्तों, थैंक यू राजस्थान, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। टेकॉइड ने ये जो एक अनुष्ठान चालू किया है अपना एक एम्प्लॉयबल यूथ बनाने का, तो इसमें मुझे भी आज आपके साथ जुड़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो टीम टेकॉइड को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में टेकॉइड के माध्यम से मेरा और आपका मिलना होगा, तो इसको भी और एक नेक्स्ट लेवल पे हम ले जाएंगे। दोस्तों, कोई भी एक सवाल होता है, उसके 2 एंगल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एचआर मैनेजर हमको पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो हम यदि वो समझ गए कि एचआर मैनेजर ने ये सवाल मुझे क्यों पूछा है, तो उसका क्यों हो गया ना, तो हाउ यानी कि वाई क्लियर है तो हाउ हो जाएगा। इसके बारे में फ्यूचर में टेकॉइड वाले टीम टेकॉइड जब मुझे दोबारा इनवाइट करेगी, तब इस चीज के ऊपर हम एक दीर्घ संवाद प्रस्थापित करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद, थैंक यू टेकॉइड। और मुझे लगता है कि यूथ राजस्थान को एम्पावर करने में ये मुहिम है, इसमें हम सब आप लोगों के साथ है। ओवर टू पारस कोठारी सर, थैंक यू। थैंक यू परेश भाई, आपका कीमती समय देने के लिए और साथ ही साथ हमारी क्वेरीज की, हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। जिज्ञासा एक ऐसी चीज है जो हम मानते हैं कि जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं वैसे वैसे हमारे मन में और सवाल और प्रश्न उठते जाते हैं। सो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि अगले कुछ दिनों में आपके साथ एक और संवाद स्थापित करें, लोगों को उनसे वापस जोड़ें और उनकी और भी जो क्वेरीज है उनको हम हैंडल करें। जैसा कि मनोज जी ने बताया कि समय की अपनी मर्यादा होती है, समय की अपनी सीमाएं होती है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट आल्सो। ऑलरेडी हम अपने दिए गए समय से काफी आगे निकल चुके हैं, तो मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं आज और ज्यादा क्वेश्चन या और ज्यादा क्वेरीज को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी ही अगर तब तक आप अपनी क्वेरीज को भेजना चाहें तो आप info@techoidenterprises.com पे भेज सकते हैं। आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और साथ ही साथ आप techoidenterprises.com को विजिट करके वहां पर आपको मिल जाएगा ईमेल, वहां पर भी आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। डेफिनेटली विल गेट यू बैक आपकी क्वेरीज के आंसर्स के साथ। और भी किसी समस्या और भी किसी प्रकार की किसी क्वेरी को अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, एवरीवन इज मोस्ट वेलकम। और एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा, साथ ही मैडम मंजू मांडोत का, कि मैडम ने हमारे साथ जुड़ करके और अपना आशीर्वाद दिया। वीसी सर का, परेश भाई का, देवड़ा सर का, प्रियंका मैडम का, मनोज जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और बहुत ही जल्द आपसे एक बार पुनः मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू, जय। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मंजू मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत ही अच्छा सेशन था। और थैंक यू पारस सर, आपका भी बहुत अच्छा, बच्चों ने भी काफी इंटरेस्ट लिया।
और मुझे लगता है इस लाइन में बच्चे जो है वो अपना काम शुरू करेंगे और एक अच्छा, क्योंकि एक चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि जो स्किल है और मल्टीटास्किंग होना आज की जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। अपना सबसे पहले ये बताओ कि आप जो आपका एजुकेशन है उसके साथ आपका प्लस स्किल क्या है, और अगर आपके साथ वो प्लस स्किल में उसमें आपकी बहुत अच्छी मास्टरी है तो आपको कोई भी कंपनी इजीली टेक ओवर करती है और आप अपना फ्यूचर भी अच्छा ब्राइट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू परेश सर, मनोज सर, प्रियंका Thank you, मैम, ma'am. भारत सर, और हमारे वीसी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो भी थोड़ी देर के लिए जी। हमसे जुड़े। और उन्होंने ये Thank you. अपॉर्चुनिटी दी आप सबसे जुड़ने की, तो उनका स्पेशल थैंक्स टू वीसी सर एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू इसी के भारत साथ सर। मैं इजाजत चाहूंगा मीटिंग को बंद करने के लिए। थैंक यू हाँ, वंस धन्यवाद अगेन शुभम, एवरीवन, बाय बाय। बाय बाय।